ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ जो उसने आज का एक खूबसूरत समा बख्शिया कि हम सब मिलकर प्रभु की आराधना में हम शामिल हो सकें। प्रभु की तारीफ और प्रभु के नाम को हम धन्य कहते हैं। हम पिछले दिनों में विश्वास के नायकों के बारे में हम पवित्र वचन से सीख रहे हैं। वी आर स्टडिंग अबाउट द हीरोज ऑफ फेथ फ्रॉम केड़े चैप्टर तो सीख रहे हैं, केड़ी किताब तो इब्रानियां 11 इब्रानियां दी पत्री तो पढ़ रहे हैं और चैप्टर केड़ा है 11वां। सो 11 बाब ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। प्रभु ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ 6ਵੇਂ ਉਪਵਾਸ ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵੇਲੇ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ? हाबिल और ਹਨੋਕ और ਹਾਬਿਲ ਹਨੋਕ ਨੂਹ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ, ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਯੋਧੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਆइए ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 11 ਬਾਬ 8 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਔਰ 19 ਆਇਤ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਇਬਰਾਨੀਆਂ 11 ਬਾਬ 8 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 19 ਆਇਤ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਵੀ ਸ਼ੈਲ ਰੀਡ ਫਰੋਮ ਹੀਬਰੂਜ਼ ਚੈਪਟਰ 11 ਵਰਸ 8 to 19। ਪੜੋ ਜੀ। ਨੈਚਾ ਨਾਲ ਅਬਰਾਮ ਜਾਂ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਜਾਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨ ਲਈ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ ਭਈ ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਤੁਰਿਆ। ਨੈਚਾ ਨਾਲ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਵਾਲੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵਸਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਪਰਾਈ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਇਸਾਕ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸੰਗ ਉਸ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਨ, ਤੰਬੂਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਉਸ ਨਗਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਹਨ, ਜਿਹਦਾ ਕਾਰੀਗਰ ਅਤੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਨੈਚਾ ਨਾਲ ਸਰਾ ਨੇ ਆਪ ਜਦ ਬੁੱਢੀ ਹੋ ਗਈ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਈ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਹਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵਫਾਦਾਰ ਜਾਣਿਆ। ਉਪਰੰਤ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜੋ ਮੁਰਦਾ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਐਨੇ ਕੁ ਨੂੰ ਉਤਪਤ ਹੋਏ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾਇਤ ਕਰਕੇ। ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਤਾਰੇ ਹਨ, ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ, ਉਤਲੀ ਰੇਤ ਦੇ ਦਾਣੇ ਜੋ ਅਣਗਿਣਤ ਹਨ। ਇਹ ਸਭੇ ਨੈਚਾ ਵਿੱਚ ਮਰ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਬਚਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋਏ, ਪਰ ਉਹ ਦੂਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਅਤੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਭਈ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਓਪਰੇ ਤੇ ਪਰਦੇਸੀ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਖਦੇ ਹਨ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਭਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਨੂੰ ਭਾਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਆਏ ਸਨ ਚੇਤੇ ਰੱਖਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਅਰਥਾਤ ਸੁਰਗੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੋਚਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਾਵੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਗਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਨੈਚਾ ਨਾਲ ਅਬਰਾਮ ਨੇ ਜਦ ਪਰਤਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸਹਾਕ ਨੂੰ ਬਲੀਦਾਨ ਲਈ ਚੜਾਇਆ। ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਇਕਲੌਤੇ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਵਾਅਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਚੜਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਅਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਭਈ ਇਸਹਾਕ ਤੋਂ ਤੇਰੀ ਅੰਸ ਖਵਾਏਗੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਉਠਾਲਣ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੇ ਮਾਨੋ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਕਥਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਆਇਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਬਰਾਨੀਆਂ 11 ਬਾਬ 6 ਆਇਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਇਬਰਾਨੀਆਂ 11 ਬਾਬ ਦਾ ਸਾਰਾਂਸ਼ ਹੈ। ਉਸ ਆਇਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਇਬਰਾਨੀਆਂ 11 ਦੀ 6 ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜੋ। ਅਤੇ ਨੈਚਾ ਬਾਜੋਂ ਉਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਉਣਾ ਹਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਉਣਾ ਹਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵੱਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵੱਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਭਈ ਉਹ ਹੈ, ਭਈ ਉਹ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਇਹ ਭਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਾਲਿਬਾਂ ਦਾ ਫਲਦਾਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਾਲਿਬਾਂ ਦਾ ਫਲਦਾਤਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਔਰ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਨੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਔਰ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜਿਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਲਿਖਿਆ 8ਵੀਂ ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और यह ना जानता था कि मैं किधर जाता हूं, तो भी निकल गया। यहां पर हम इस प्रकार से देखते हैं अब्राहम की कहानी, अब्राहम की बुलाहट,
अब्राहम जब निकला उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। अगर अब्राहम के बारे में पढ़ना है तो उत्पत्ति की किताब में लिखा हुआ उसकी कहानी है। उत्पत्ति 12 अध्याय में उसकी बुलाहट की शुरुआत हम पढ़ते हैं। कल हमने देखा था नोहा के बारे में या नूह नबी के बारे में, जिसके बारे में उत्पत्ति 6 से 9 अध्याय में हम उसका विवरण को हम देखते हैं। बड़े ध्यान से सुनना। उत्पत्ति 6 से 9 नूह नबी के बारे में है कि कैसे परमेश्वर ने नूह और उसके परिवार को बचाया और जल प्रलय आया, सब कुछ नाश हो गया। परंतु परमेश्वर की योजना में नूह को जीवित रखना था। परमेश्वर की योजना में नूह के द्वारा एक नई पीढ़ी को तैयार करना था और परमेश्वर ने ऐसा किया भी। नूह और उसके 3 बेटे, 3 बहुएं, नूह और उसकी पत्नी, 8 जन बचाए गए। शेम, हाम और याफेत से परमेश्वर ने एक नई शुरुआत किया, एक नई पीढ़ी की शुरुआत हुई। उसके 3 पुत्र थे जिसके बारे में हम उत्पत्ति 10 अध्याय, 11 अध्याय, उसके आगे के वंश के बारे में हम देखते हैं, नूह की वंशावली के बारे में। उत्पत्ति 10 और 11 में नूह की वंशावली के बारे में पढ़ते हैं। उत्पत्ति 11 अध्याय में बाबुल के बुर्ज के बारे में पढ़ते हैं, कैसे लोग सारे एका किया और जब उन्होंने अपने मन को एक किया, अपने लिए एक ऐसा बुर्ज बनाने की ठानी कि वो परमेश्वर तक पहुंच सके, परमेश्वर ने उनकी सारी भाषाओं में गड़बड़ियां डाल दी और सब तितर बितर हो गए। लेकिन उत्पत्ति 11 अध्याय के आखिरी हिस्से में अब्राहम के पिता तेरह के बारे में हम पढ़ते हैं। इस अब्राहम की कहानी, अब्राहम के विषय में उत्पत्ति के 14 अध्याय, there are 14 chapters mentioned and dedicated only for Abraham। उत्पत्ति पहले अध्याय से लेकर 11 अध्याय तक बहुत सारी पीढ़ियां आई, बदली, उल्ट पुल्ट हो गया, जल प्रलय आया, विनाश हुआ, नई पीढ़ी आई, तितर बितर हो गए, सब कुछ लिखा। लेकिन 14 अध्याय मतलब टोटल 14 चैप्टर्स, नेक्स्ट 14 चैप्टर्स, अगले 14 अध्याय अब्राहम के विषय में कहा गया। अब्राहम जिसको विश्वासियों का पिता भी कहा गया, अब्राहम जिसको परमेश्वर का मित्र भी कहा गया, अब्राहम जिसके बारे में इतना मशहूर व्यक्ति, जिसके बारे में आज के दुनिया में भी अधिकतर लोग अब्राहम को याद करते हैं। मसीही लोग भी, क्रिश्चियंस भी अब्राहम को याद करते हैं, यहूदी लोग भी अब्राहम को याद करते हैं, मुसलमान लोग भी अब्राहम को याद करते हैं। अब्राहम प्लेज अ ग्रेटर रोल, बहुत बड़ा उसका किरदार, अब्राहम का जीवन एक बहुत बड़ा हिस्सा आज के दुनिया में भी, आज के युग में भी अब्राहम को याद किया जाता है, अब्राहम की वंशावली को याद किया जाता है। अब्राहम की पीढ़ी से जब हम देखते हैं एक इस्माइल की कौम और एक इसहाक की कौम, दोनों पीढ़ियों को हम देखते हैं और उनके अलग अलग रोल को, उनके अलग अलग अनुभवों को, उनके अलग अलग और प्रभाव को आज के समय में भी हम पढ़ते और देखते हैं। ध्यान देना, अब्राहम परमेश्वर का डर रखता था। उसके जीवन से आप और मैं हम ये सीख सकते हैं, द फियर ऑफ गॉड कैन फ्री अस फ्रॉम द फियर ऑफ एनी ह्यूमन बीइंग। परमेश्वर का डर हमें मनुष्य के डर से दूर करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब्राहम ने परमेश्वर का डर रखा, इसलिए परमेश्वर ने उसका साथ दिया, उसको बल दिया और यहां तक उसको लेकर आया। हालेलुया, हालेलुया। अब्राहम का जीवन एक विश्वास से भरा हुआ जीवन था। अब्राहम की शुरुआत एक विश्वास के साथ शुरू हुई। अगर आप देखें जो हमने पढ़ा, विश्वास से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था। उसको पता नहीं वो देश कैसा होगा, उसे पता नहीं कहां पर खुदा लेके जाएगा, लेकिन उसको एक बात का जरूर पता था, मेरा परमेश्वर जहां भी लेकर जाएगा वो मेरे लिए सबसे उत्तम होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम देखें उत्पत्ति। ज्यादातर हम अब्राहम की कहानी के बारे में पढ़ते हैं तो कौन सा चैप्टर याद आता है? उत्पत्ति। लेकिन नहीं, उत्पत्ति 12 अध्याय से नहीं पढ़ेंगे, उत्पत्ति 11 अध्याय से हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति 11 अध्याय और उसकी 27 से लेकर 32 आयत को हम पढ़ेंगे। जेनेसिस 11 वर्स 27 to 32।
तेरे की वंशावली ये है, ਅਸੀਂ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੋਂ ਸੁਣਾਂਗੇ, ठीक है? हाँ, पढ़ो। तेरे की वंशावली ये है, तेरे से अब्राम, नाहोर और हारान का जन्म हुआ, और हारान से लूत का जन्म हुआ। हाँ। हारान अपने पिता के सामने ही कसदियों के ऊर नामक नगर में, जो उसकी जन्मभूमि थी, मर गया। हाँ। अब्राम और नाहोर दोनों ने विवाह किया। अब्राम की पत्नी का नाम सारे और नाहोर की पत्नी का नाम मिल्का था। ये उस हारान की बेटी थी जो मिल्का और इसका दोनों का पिता था। सारे तो बांझ थी, उसके संतान ना हुई। हाँ। तेरे अपने पुत्र अब्राम और अपने पोते लूत जो हारान का पुत्र था, और अपनी बहू सारे जो उसके पुत्र अब्राम की पत्नी थी, इन सबों को लेकर कसदियों के ऊर नगर से निकल कनान देश जाने को चला। हाँ। पर हारान नामक देश में पहुंचकर वहीं रहने लगा। हाँ। जब तेरे 205 वर्ष का हुआ तब वह हारान देश में मर गया। ਹੁਣ 12 ਅਧਿਆਏ ਉਸ ਦੀ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਆਇਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜੋ। ਤਦ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਾਕਾਂ ਤੋਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂਗਾ ਨਿਕਲ ਤੋਰ, ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੌਮ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦਿਆਂਗਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਵੱਡਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਔਰ ਤੂੰ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ। ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦਿਆਂਗਾ। हालेलुया, ਹਾਲੇਲੂਇਆ हालेलुया। हालेलुया। लिखा अब्राहम का पिता, अब्राहम का पिता, उसका नाम था तेरह। तेरह से अब्राहम, नाहोर और हारान का जन्म हुआ। तेरह दे 3 पुत्र सन, अब्राहम, नाहोर और हारान। हारान का पुत्र सी लूत। जद हारान अपने पिता ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਸਦੀਆਂ ਦੇ ਊਰ ਨਾਮਕ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਸੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਲਿਖਿਆ 13 ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਅਬਰਾਹਮ, ਆਪਣੇ ਪੋਤੇ ਲੂਤ ਜੋ ਹਾਰਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਬਹੂ ਸਾਰਾ ਨੂੰ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਸਦੀਆਂ ਦੇ ਊਰ ਨਗਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਗਿਆ? कनान देश। कहां को गया? कनान कनान। देश को। ध्यान से सुने, कनान देश को गया। कनान देश कौन सा देश है? कनान किसकी मिरास थी? मैंने पहले कहा पिछले अध्यायों में नूह के 3 पुत्र थे, शेम, हाम, याफेत। ध्यान से सुना, शेम, हाम और याफेत। 3 पुत्र थे, शेम, हाम और याफेत। जब परमेश्वर ने एक नई पीढ़ी को शुरू किया, उसका एक पुत्र जिसका नाम था हाम, उसने अपने पिता से गलत काम करवाया, और हाम जो था वो श्रापित गिना गया। हाम की पीढ़ी से कनान, यबूसी, हित्ती, ये सारी कौम निकल के आई। लेकिन कनान एक ऐसी जगह और ऐसे लोगों का वास बना जो श्रापित था, या उसके पीढ़ी से निकले जो श्रापित लोग थे। लेकिन जब अब्राहम उस जगह से निकल रहा है, कनान की ओर जाने लगा है, तो परमेश्वर क्या वायदा कर रहा है? जहां पर परमेश्वर के लोग होंगे वो श्रापित जगह को भी फलवंत बनाएंगे। परमेश्वर श्रापित जगह से निकालकर उन्हें एक आशीष वाली जगह में लेके जाने वाला है। परमेश्वर अब्राहम को एक दर्शन देके कहता है, अब्राहम अपना देश, अपने कुटुंबी, अपने रिश्तेदार, अपने पिता के घर को छोड़कर तू यहां से निकल और चला जा उस देश की ओर जो मैं तुझे क्या करूंगा? दिखाऊंगा। पहली बात, अब्राहम को परमेश्वर ने विश्वास के साथ बुलाया और एक ऐसी मिरास में लेकर गया जो मूर्ति पूजा से बाहर था। आए हम पढ़े यहोशुआ की किताब 24 अध्याय और उसका दूसरी आयत को पढ़ेंगे। द बुक ऑफ जोशुआ चैप्टर 24 वर्स 2। यहोशुआ 24 की 2 आयत को पढ़ें। तब यहोशू ने उन सब लोगों से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा इस प्रकार कहता है, प्राचीन काल में अब्राहम और नाहोर का पिता तेरे आदि तुम्हारे पुरखा परात्मा अनंत के उस पर रहते हुए दूसरे देवताओं की उपासना करते थे। बस। और तीसरी आयत, और मैंने तुम्हारे मूल पुरुष अब्राहम को महानद के उस पार से ले आकर कनान देश के सब स्थानों में फिराया और उसका वंश बढ़ाया और उसे इसहाक को दिया। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन ये सिखाता है
प्राचीन काल में देखो, अब्राहम और नाहोर का पिता तेरह आदि, तुम्हारे बुजुर्ग लोग महानद के उस पार रहते हुए दूसरे देवी देवताओं की क्या करते थे? उपासना करते थे। लेकिन मैंने उन्हें वहां से बाहर निकाल के लेकर आया और उन्हें मिरास वाली एक अच्छी जगह उन्हें दिया, अब्राहम को दिया और उसके पुत्र इसहाक को दिया। मेरे प्यारे अजीजों, विश्वास का जीवन की शुरुआत कहां से होती है? बाहर निकलने से होती है। द लाइफ ऑफ फेथ स्टार्ट फ्रॉम कमिंग आउट, बाहर निकलने से। जहां पर अब्राहम पहले था वो मूर्ति पूजा, देवी देवताओं की उपासना करने वाले लोग थे, लेकिन परमेश्वर ने कहा तू यहां से बाहर को निकल के आ। हालेलुया, हालेलुया। और फिर परमेश्वर से कहा मैं तुझे आशीष दूंगा और तुझे आशीष का कारण बनाऊंगा। तेरी अंश जो है रेत के किनकों के समान, आकाश के तारों के समान होगी। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से सुने, इंग्लिश में एक वर्ड है चर्च, चर्च, लेकिन उसका तर्जमा हमारे पंजाबी में, उर्दू में, हिंदी में बिल्कुल सही किया गया। की कहते हैं असी चर्च नू? गिरजा। नहीं नहीं नहीं, कलीसिया सही है, कलीसिया। कलीसिया कहते हैं, गिरजा एक बिल्डिंग है, कलीसिया लोकां नूं असीं कहंदे, संगत नूं कहंदे कलीसिया। लेकिन कलीसिया शब्द एक यूनानी भाषा से आया, एक्लेसिया, EKKLESIA, एक्लेसिया। कलीसिया शब्द जिसनों नहीं पता, कई बार से कोई पूछ ही लेंदा है कलीसिया का मतलब की है, कलीसिया का अर्थ की है। कलीसिया एक यूनानी शब्द तो आया एक्लेसिया, EKKLESIA। हुण एक्लेसिया का मतलब की है? एक्लेसिया का मतलब है कॉल्ड आउट पीपल, बाहर बुलाए हुए लोग, बाहर या सदे हुए लोग, कॉल्ड आउट पीपल। वो लोग पहले किते होर सी, हुण उन्हां नूं परमेश्वर ने उधरों दी कढ के बाहर बुलाया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जैसे अपने जीवन नूं देखिए, असी कौन सी, असी पहले अब्राहम दे वांगू देवी देवते दे उस जगह दे विच उपासना करने वाले लोग सन, लेकिन परमेश्वर ने सानू विश्वास दिता, परमेश्वर ने साडे ईमान नूं मजबूत किया, इन्हां दे विचों दी बाहर निकल के आओ, मैं तेरा परमेश्वर होवांगा। हालेलुया। पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय उसकी 17 और 18 आयत को पढ़ेंगे। लेट अस रीड 1 Corinthians chapter 6 verse 17 and 18। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय उसकी 17 और 18 आयत को पढ़ें। और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। बस लिखिया, और जो प्रभु दी संगति दे विच रहंदा है वो उस दे नाल एक आत्मा हो जाता है। पढ़े पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय उसका 9वीं आयत को भी पढ़े। 1 Corinthians 1 verse 9। परमेश्वर वफादार है ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭु ਦੀ ਸੰਗਤ ਲਈ ਸੱਦੇ ਗਏ ਸੋ। हालेलुया, हालेलुया। लिखा है परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर वफादार है, जिसने हमको अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह की संगति में क्या किया है? बुलाया। He has called out, उसने हमें बाहर बुलाया, उसने हमें कहा कि तुम उनमें से निकल आओ, मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। आयम पढ़े 2 कुरिन्थियों 6 अध्याय उसकी 14 आयत से लेकर 18 आयत को पढ़े। 2 Corinthians 6 from verse 14 to 18 पढ़े। ਤੁਸੀਂ ਬੇਪਰਤੀਤਿਆਂ ਨਾਲ ਹੰਸਾਵੇਂ ਨਾ ਜਤੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਧਰਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਾਂਝ ਹੈ, ਜਾਂ ਚਾਨਣ ਦਾ ਹਨੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮੇਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦਾ ਬਲਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮਿਲਾਪ ਹੈ, ਹਾਂ। ਅਥਵਾ ਪ੍ਰਤੀਤਵਾਨ ਦਾ ਬੇਪਰਤੀਤੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, विश्वासी दा अविश्वासी दे नाल की नाता है, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੈਕਲ ਨੂੰ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਸਤਾ ਹੈ। परमेश्वर दे भवन दा मूर्तियां दे नाल की वास्ता है। हाँ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੈਕਲ ਹਾਂ, हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं। हाँ। ਜਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤਾ, हाँ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਕਰਾਂਗਾ जैसे परमेश्वर ने कहा मैं उनमें बसूंगा ਅਤੇ ਫਿਰਿਆ ਕਰਾਂਗਾ, और उनमें चला फिरा करूंगा, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ मैं उनका परमेश्वर हूंगा। ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ होंगे। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हारा परमेश्वर हूंगा, तुम मेरे लोग होंगे, मैं तुम्हारे बीच में चला फिरा करूंगा,
मैं उनमें बसूंगा। आगे पढ़ो। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਓ इसलिए उनमें से निकल आओ, इसलिए उनमें से निकल आओ ਅਤੇ ਅੱਡ ਹੋਵੋ अते अलग रहो। ਪ੍ਰਭੂ ਆਖਦਾ ਹੈ परमेश्वर कहता है, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਵਸਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਓ हाँ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है किसी अशुद्ध वस्तु को हाथ मत लगाना, मैं तुम्हें क्या करूंगा? ਕਬੂਲ ਕਰ ओ ਲਵਾਂਗਾ अब्राहम को जब परमेश्वर ने कहा उनमें से बाहर निकला, छोड़ के निकला, परमेश्वर कह रहा था मैं तुम्हें क्या करूंगा? ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ कबूल करूंगा। आगे बढ़े। ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਤਾ ਹੋਵਾਂਗਾ और तुम्हारा क्या होगा? ਪਿਤਾ ਹੋਵਾਂਗਾ तुम्हारा बाप बनूंगा। आगे। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਹੋਵੋਗੇ और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। ਇਹ ਬਚਨ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹੈ हालेलुया। हालेलुया। ये वचन सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का है। जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को कबूल करता है, जब उस जगह से एक फैसला करता है कि मैं अपना सब कुछ, अपना देश, अपनी भाषा, अपना संस्कार, अपनी बोली, अपने रिश्तेदार, इन सब लोगों की लीक से बाहर आऊंगा, तो परमेश्वर कह रहा है कि मुझे पता है बहुत सारे के माता पिता आप लोगों को छोड़ देंगे, बहुत सारे रिश्तेदार आपको छोड़ देंगे, बहुत सारे रिश्ते टूट जाएंगे मसीह में आने के बाद, लेकिन परमेश्वर ने एक वायदा आप लोगों के साथ किया, मेरे साथ किया, आपके साथ किया। कहा मैं तुम्हारा पिता होऊंगा, मैं तुम्हारा पिता हूँगा। आई विल बी योर फादर। चाहे वचन में लिखा एक दूध पीते बच्चे को एक माँ भी छोड़ दे तो भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। हालेलुया। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। प्रभु में आने के बाद चाहे माता पिता में छोड़ दे तो सच्चाई के लिए बाहर निकलना जरूरी है, क्योंकि अंधकार का सच्चाई के साथ कोई मेल नहीं। जब सच्चाई हमारे जीवन में आया हमें पता लगा अंधकार और सच्चाई में क्या फर्क है। हालेलुया। हालेलुया। एक विश्वास के साथ निकलने का परिणाम ही ये है that we are called out people, हम बाहर बुलाए हुए लोग हैं। पहला यूहन्ना 3:1 में भी लिखा हम परमेश्वर की संतान हैं। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए यूहन्ना की इंजील में इस प्रकार से लिखा, जिन्होंने उसे कबूल किया उनको उसने पुत्र होने का अधिकार दिया। जिन्हों ने उसनु कबूल किया उन्होंने उसने पुत्र होने का की दिता अधिकार कार दिया। नौकर होने का अधिकार नहीं। इसलिए मैं अक्सर कई बार यहां पे कह चुका हूं, हमारा रिश्ता जब हम प्रभु में आते हैं, दुनिया में एक आम प्रचलित बात है क्या बात है पता है? वो हमारा मालिक है, हम उसके नौकर हैं। राइट? ज्यादातर लोग कहते हैं वो मालिक है, असी नौकर। सब कुछ मालिक दे हाथ दे विच है, ऐसा ही कहते, सब कुछ किहदे हाथ विच है? मालिक दे। वो मालिक है, असी नौकर हां। लेकिन मैं तुहानू कहां, पवित्र बाइबल हमें ये नहीं सिखाता। पवित्र बाइबल हमारा रिश्ता जो परमेश्वर के साथ है, मालिक और नौकर का रिश्ता नहीं, लेकिन हमें सिखाता है बाप और बच्चों का जैसा रिश्ता है वो रिश्ता खुदा हमें देता है। हालेलुया। मालिक और नौकर का रिश्ता, बाप और बच्चों के रिश्ते दे विच जमीन आसमान का फर्क है। सही है? मालिक और नौकर का रिश्ता, बाप और बच्चों के रिश्ते दे विच जमीन आसमान का की है फर्क है। नौकर अपने मालिक को खुश कराने के लिए काम करेगा, लेकिन बच्चे अपने बाप को खुश कराने के लिए काम नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि उन्होंने एक खून का रिश्ता है। किहदा रिश्ता है? एक खून का रिश्ता है, एक खून का रिश्ता है। वो रिश्ता कोई भी किसी से, उस बाप को अपने बच्चों से कभी भी छीन के नहीं लेके जा सकता, कभी भी उसनु गवाच नहीं सकते, क्योंकि एक खून का की एक रिश्ता है। परमेश्वर ने कहा जब तुसी उन्हां दे विचों बाहर निकल के आओगे मैं तुहाडा पिता होवांगा, मैं तुहानू कबूल करांगा, तुसी मेरे बेटे और बेटियां बनोगे। हालेलुया। 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 परमेश्वर के वचन में अब्राहम को बुलाया गया कि उस मूर्ति पूजा के विरासत से बाहर निकल के आना। आप जब प्रभु में आए, आप एक विश्वास के साथ बाहर आए। हमारे बुजुर्ग सब प्रभु से दूर थे, कोई प्रभु में नहीं चलते थे, लेकिन प्रभु का धन्यवाद, ये सच्चाई, ये प्रकाश हमारे दिलों में आया, हमारे जीवनों में आया। इस बात को हमने जाना कि अंधकार का रास्ता कौन सा है। मैंने परमेश्वर के साथ एक करीबी रिश्ते को जोड़ना है
और हम अंधकार से निकलकर सच्चाई के रास्ते पर आ गए। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। एक जीवित विश्वास कौन सा विश्वास है? पहले मैंने कहा, इब्रानियों 11 अध्याय में कहा, विश्वास से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और यह ना जानता था मैं किधर को जाता हूं, तो भी निकल गया। 9वीं आयत में पढ़ो, क्या लिखा? 11 की 9। ਨਿਹਚਾ ਨਾਲ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਵਾਲੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵਸਿਆ। विश्वास, इसने विश्वास ही से वो वायदे किए हुए जमीन पर देश में चला गया। आगे, ਜਿਵੇਂ ਪਰਾਈ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਇਸਾਕ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਸੰਗ ਉਸੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਨ ਤੰਬੂਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਕੀਤਾ। हालेलुया। हालेलुया। देखा है, विश्वास इसे उसने वायदे को लेते हुए देश में, पराए देश में परदेशी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे तंबुओं में वास किया। दूसरी बात, एक जीवित विश्वास में क्या सिखाता है? अब्राहम एक जीवित विश्वास को जब लेकर चल रहा था, वो इस बात को मान गया कि मैं इस पृथ्वी में रहते हुए एक मुसाफिर हूं। आई एम अ स्ट्रेंजर, आई एम अ पिलग्रिम इन दिस वर्ल्ड। A living faith is a pilgrimage pioneered by God. एक जीवित विश्वास हमें यह सिखाता है कि इस दुनिया में रहते हुए हम परदेसी हैं। ये शरीर एक तंबू है, ये दुनिया एक तंबू है, नाशवान तंबू। एक दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा। हम नाशवान को छोड़ते हुए अविनाशी को पहनेंगे। हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना की इंजील 15 अध्याय उसकी 16 आयत को पढ़े, क्या लिखा है? यूहन्ना की इंजील 15 अध्याय उसकी 16 आयत को पढ़ें। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें क्या किया है? चुना है। सारे बोलेंगे, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ, पर परमेश्वर ने सानू चुनिया है। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। हालेलुया, हालेलुया। लिखा कि हमने परमेश्वर को नहीं चुना, परंतु परमेश्वर ने हमें क्या कर लिया? चुना है। ਲਿਆ ਹੈ। कितनी बड़ी बात है। It's not that we have chosen him, but it is he who has chosen us. इस दुनिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ अपने बुलाए हुए ਨੂੰ तो देखो, अपने सदे हुए ਨੂੰ तो देखो। ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿੰਨੇ ਅਧਿਕ ਬੁੱਧੀਮਾਨ, ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿੰਨੇ ਅਧਿਕ ਧਨਵਾਨ, ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿੰਨੇ ਅਧਿਕ ਬਲਵਾਨ ਲੋਕ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਪਰੰਤੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਜਦ ਚੁਣਿਆ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਅਬਰਾਹਮ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ, पर परमेश्वर ने मैंने चुन लिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और यूहन्ना 6 की 37 में लिखा है, जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी ना निकालूंगा। जो कोई प्रभु के पास आएगा वह उसे निकालेगा नहीं, परंतु लिखा है, जो कोई मेरे पास आएगा, जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आएंगे। हालेलुया, हालेलुया। लिखिया, जब अब्राहम ने परमेश्वर की आवाज ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ हीब्रू लैंग्वेज ਦਾ ग्रामेटिकल सिंटैक्स, या ऐसे कहें जिस भाषा में नया पुराना नियम लिखा गया, उस वाक्य का व्याकरण इस प्रकार से है, जब अब्राहम ने सुना कि परमेश्वर ने उसे कहा कि यहां से निकल, और अगले वचन में लिखा अब्राहम चल पड़ा। That was an instant obedience. वो उसी समय मानने वाली बात थी। कहा, सुना और उसी समय निकल पड़ा, सुना और निकल पड़ा, देरी नहीं की। वचन में यीशु मसीह ने अंद्रयास और पतरस को कहा, मेरे पीछे हो ले। उसी समय वो जाल छोड़कर प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिए। विश्वास किस बात को सिखाता है? विश्वास उसी बात को सिखाता है, जिस समय परमेश्वर हमें बुलाए हम उसी समय उस कहने को मानते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इट इज अ पिलग्रिमेज, ये सफर है। इस सफर में रहते हुए हम इस बात को जाने
ये सफर की शुरुआत आपने नहीं की, इस सफर की शुरुआत मैंने नहीं की, इस सफर की शुरुआत परमेश्वर की बुलाहट से हुआ। जब वो कहे उठो और चलो, हम उसी समय चलने के लिए क्या हो जाएं, तैयार हो जाएं। हालेलुया, 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 हालेलुया। 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 अब्राहम ने जब विश्वास के साथ वो चल पड़ा, उसने भी कभी सपने में सोचा होगा जरूर कि परमेश्वर उसको कैसी आशीष देगा। उसकी कोई औलाद नहीं, लेकिन परमेश्वर उसको बड़े बड़े वायदे दे रहा है। विश्वास इसी को तो कहते हैं। विश्वास के नाल जदों चलिया, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ कोई औलाद नहीं, बुजुर्ग हो रहे हैं, लेकिन उसको जानदा सी ਇਹ बुलाहट बड़ा व्यक्तिगत है। दिस कॉल इज वेरी पर्सनल। ਇਹ परमेश्वर ਦੀ बुलाहट मेरे ਲਈ एक बहुत व्यक्तिगत बुलाहट है। परमेश्वर ने किसी होर ਨੂੰ नहीं चुनिया, परमेश्वर ने सारिਆਂ ਨੂੰ नहीं किया, लेकिन परमेश्वर ने जे मैनू बुलाया एक बहुत खास, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर ने मेरे लिए किया, क्योंकि परमेश्वर ने सुन किया मैं तुझे ही आशीष दूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा। परमेश्वर ने ये नहीं किया तेरे नाल जने रिश्तेदार आए उन्होंने भी आशीष देवांगा, but God was saying I will bless you and make your name great and I will cause you to be a blessing to many। परमेश्वर उसको कह रहा था मैं तुझे आशीष दूंगा और तेरे नाम को बड़ा करूंगा और तेरे से एक बड़ी जाति को बनाऊंगा और तेरे नाम को महान करूंगा और तू बहुतों के लिए एक आशीष का कारण होगा। मेरे प्यारे अजीजों, when God calls you, जब परमेश्वर आपको बुलाए, it is a very personal call। जब परमेश्वर आपको बुलाए एक बड़ा व्यक्तिगत स्पष्ट एक बुलाहट के साथ वो आपको बुलाता है। कई बार जैसे मैंने कल कहा, कई बार परमेश्वर सबके लिए बात करता है, लेकिन कई बार परमेश्वर सबके लिए बात नहीं, परमेश्वर खास आपके लिए बात करता है। हालेलुया, हालेलुया। पढ़े यूहन्ना की इंजील 10 अध्याय और उसका 3री आयत को पढ़ें। जॉन चैप्टर 10 वर्स 3। उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है और भेड़ें उसका शब्द सुनती हैं और वह अपनी भेड़ों का नाम ले लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। हालेलुया, हालेलुया। लिखा है पंजाबी च भी पढ़ो, यूहन्ना 10 ਦੀ 3 ਆਇਤ ਪੜੋ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਦਰਬਾਨ ਖੋਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭੇਡਾਂ ਉਹਦਾ ਬੋਲ ਸੁਣਦੀਆਂ ਹਨ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਨਾਂ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। हाँ, जब वो अपनी सारिया भेड़ों को काट चुकता है, बस लिखा वे अपनी भेड़ों का नाम ले लेकर बुलाता है। वो अपनी भेड़ों का नाम ले लेकर बुलाता है। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰੇਕ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, हालेलुया। ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂया। हालेलुया। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। परमेश्वर ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਣਦਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਜੋ ਕੋਈ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ जीवन की पुस्तक ਕਿਧਰ? जीवन की पुस्तक। ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ स्वर्ग ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਜ है। हालेलुया, हालेलुया। 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 लिखा है कि वो नाम ले लेकर क्या करता है, बुलाता है। वो अब्राहम जानता था परमेश्वर मेरे नाम को क्या करता है, जानता है। He knows my name, वो आपके नाम को जानता है। Praise the Lord, हालेलुया, हालेलुया। 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 ये पिछले बार भी मैं एक कहानी ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਇਹ सच बीती गल मैं उस व्यक्ति ਨੂੰ देखा और उसकी गवाही ਨੂੰ भी अपने अखां दे सामने सुनिया। परमेश्वर का सेवक का एक बेटा था, उसके 2 बेटे और 3 बेटियां। एक बेटा प्रभु से पीछे हट गया, उसका नाम था उसका नाम है टिम, उसका नाम टिम है। वो परमेश्वर के हजूरी से दूर चला गया। उसके माता पिता खुदा की बड़ी सेवा करते थे, सेवा करते हैं, बड़ी सेवा वो करते हैं, कभी इधर कभी इस मुल्क दे विच, कभी इस मुल्क दे विच, अलग अलग देशों में जाकर प्रभु की आराधना करते थे। लेकिन एक बेटा जो बड़ा बेटा था टिम, वो परमेश्वर से दूर हो गया। और जब दूर हो गया, उसके माता पिता बड़े फेमस हैं, बड़े मशहूर हैं।
उसको परमेश्वर के नाम से इतनी नफरत हो गई, कहता कि प्रभु यीशु मसीह का नाम तक नहीं मेरा मैं अपनी जुबान तो लेना। वो अपने जिथे उसका जन्म होया, जन्म स्थान जिथे उसकी परवरिश हुई, उधर उसकी छड़ के वो लगभग कोई 400 किलोमीटर दूर उस वखरी जगह दे विच रहन लग पिया। और उस जगह दे विच जदों रहिंदा सी, वो घरों भज के गया, लड़ के गया, नशे करदा सी, बहुत नशे करदा सी। और उसके बाप ने भी उसनूं कहा, जे तू मेरे अधीन होएगा फिर ही तू घर आना, जे तू चलना है ये बैग लैके चले जा, वापस ना आई। कहंदा ठीक है। बहुत सतांदा सी, वो बैग लैके चला गया। 400 किलोमीटर दूर जाके उस जगह जो रह रहा सी, एक येलो पेजिस नामक एक कंपनी है। उस समय डायरैक्टरी होंदी सी, फोन की डायरैक्टरी है, अज के टाइम से नहीं है, पुराने टाइम से फोन की डायरैक्टरी होंदी। येलो पेजिस नामक एक कंपनी सी, कॉल सेंटर सी। उस जगह दे विच वो काम करन लग पिया। उन्होंने अपने माता पिता तो नफरत हो गई, उसनूं परमेश्वर तो नफरत हो गई। उसनूं पता सी जे मैं अपना नाम किसी ने पूरा नाम दसिया, लोगों ने पहचान लेना मैं कौन हाँ। उसने अपने नाम का जिहड़ा पिछला नाम, जिहड़ा सरनेम है, फैमिली नेम होता है, पारिवारिक नाम होता है, उसने कटाता। उसने कहा कि मेरा कोई पूछता तेरा नाम क्यों, कहता सी मेरा नाम टिम है। वो अपना पूरा नाम नहीं सी दसदा, ताकि कोई किसी ना किसी रीति ना मैनू फड़ ना लवे, या मेरे बारे कोई मेरे माता पिता को ना दस दे। चला गया। येलो पेजिस नामक कंपनी दे विच काम कर रहा सी, कॉल सेंटर से जॉब कर रहा सी। उसके माता पिता और कलीसिया सब मिलके प्रार्थना कर रहे सन कि इस टिम नूं खुदा तुसीं वापस लैके आना, परमेश्वर तुसीं वापस लेके टिम नूं तुसीं वापस लैके आना। वो नहीं मुड़िया। येलो पेजिस से काम कर रहा सी, हाल माड़े हो गए। उसका एक रिश्ता किसी दे नाल, एक लड़की दे नाल रिश्ता जो जुड़िया, और लड़की दे मां ने उसनूं प्रभु यीशु मसीह दे बारे दसिया। कहंदा ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੋ, ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ना करना। ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ। ਖੈਰ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਦਾ ਮਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਝੁਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਉਹ ਚਰਚ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਚਰਚ ਸੀ। ਬੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚਰਚ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਹੀ ਉਸ ਚਰਚ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਦਾ ਸੀ। जब उसको पता लगा ओह मेरे पिता ने इस चर्च को स्थापित किया है, वो पिछे रहिंदा सी ताकि किसी को भी ना पता लगे कि मैं टिम हाँ, मेरा नाम फलाना। पिछे पिछे रहिंदा सी। उसने परमेश्वर का वचन कायल करना शुरू होया। वो अपने घर वापस गया। जब घर वापस गया, सूटकेस बन के गया। उसके पिता और माता दोवें घर के अंदर सन। उसने दरवाजा खड़काया। मां नूं पता लग गया कौन आया, बेटा आया, टिम आया। बाप ने क्या दरवाजा नहीं खोलना। बाप ने क्या दरवाजा नहीं, कहते दरवाजा नहीं खोलना। उसने क्या कैरल दरवाजा नहीं खोलना, अंदरों आवाज देना। उन्हें पूछा बेटे कौन हो, कहता मैं टिम हाँ। मां ने अंदरों सवाल पूछा, बेटे की तुसी अपने पिता दे अधीन होके रहोगे? कहता है वो नहीं मैं करना। कहता है वो नहीं करना। कहता वो नहीं मैं करना। बाप ने क्या बुआ बंद ही रखना। बाप कह रहे हैं बुआ बांधी रख। दरवाजा बंद रखना। अच्छा जे असी हिंदुस्तानी मां पियो होंदे की कहना सी, वो छड्डो परा, इन्नी देर बाद आया मुंडा, खोलो है। मां ने क्या ये नहीं होएगा, जे तू अपने बाप दे अधीन होना सीखे फिर ही मैं दरवाजा खोलना। वो कहता मैं चलना। नहीं आया, वो चला गया, वापस चला गया। मैं उस खुदा दा सेवक दे घर च रहा। वो खुदा दा सेवक कहता जिन्ना इन्ने साल मैं लूका दी अंजील 15 बार मैं बहुत बारी पढ़िया, पर 2 साल या 3 साल जब तक मेरा बेटा बाहर रहा, लूका 15 बाप मैं इन्नी बारी पढ़ चुका, इन्नी बारी पढ़ चुका कि पूछो ही ना। लूका 15 च की है? उजाड़ू पुत्र की कहानी। कहता मैं उजाड़ू पुत्र की कहानी मैं रोज पढ़ता सी, अपने पत्नी दे नाल बैठ के रोज रोंदा सी, प्रभु दे अगे रोंदा रहा। लूका 15 बाप कितनी बारी खुदा मेरे नाल उस लूका 15 बाप तो गलबात करदा। कहते मैं वापस चला गया, अपना जीवन फिर उजाड़ लिया।
फिर सुनना कहानी किस तरह हुई। कहता वापस चला गया नॉर्वे, एक दूसरा मुल्क है नॉर्वे। नॉर्वे तो एक नबी सी, एक भविष्यवक्ता सी, उसने उसਨੂੰ फोन किया। उसने फोन लगाया, उसने पूछा ਇਹ ਨਬੀ ਖੁਦਾ ਦੱਸਿਓ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਟਿਮ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਤੁਸੀਂ, ਉਸਨੇ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਸੌਰੀ ਉਸਨੇ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਲਿਆ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਟਿਮ, ਔਰ ਉਸਦਾ ਸਰਨੇਮ ਵੀ ਬੋਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਇਹੀ ਹੈ? ਨੰਬਰ ਪੂਰੇ ਬੋਲੇ, ਫੋਨ ਨੰਬਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹਾਂ। ਉਸਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵੱਲ ਵਾਪਿਸ ਮੋੜਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵੱਲ वापिस आ जा। ਔਰ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਦਸੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਸੀ, ਉਹ ਨਬੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਜਾਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਬੀ ਕੌਣ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦ ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਇੱਕਦਮ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੋਚਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, जानदा है। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵਾਪਿਸ ਗਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ, ਸਵਰਗੀ ਬਾਪ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਔਰ ਅੱਜ ਉਹ ਬੇਟਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। हालेलुया। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਛਿਪ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਸਰਨੇਮ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੇਡਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਪੇਡਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਟ ਵਾਸ ਅ ਵੈਰੀ ਪਰਸਨਲ ਕਾਲ, ਉਹ ਬੜਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਾਲ ਸੀ, ਬੁਲਾਹਟ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ, ਦੇਖ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਭੇਡ ਬਣੇਗਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਅਯਾਲੀ ਬਣਾਉਂਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਾਲ ਇਹ ਬੁਲਾਹਟ ਬੜੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਕਿਹਾ। That is the reason God called him his friend. ਜੇਕਰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਿੱਤਰ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਅਬਰਾਹਮ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਜਦ ਸਦੋਮ ਔਰ ਗੋਮੋਰਾ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵਾਂ? How can I go to Sodom and Gomorrah without telling Abraham? मैं अब्राहम ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵਾਂ? ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਪਿਤਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕੀ ਸੀ? ਲਿਖਿਆ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰੇ ਹੋਏ ਤੋਂ ਵੀ, ਪੜੋ ਇਬਰਾਨੀਆਂ 11 ਬਾਬ ਆਖਰੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ, ਹੀਬਰੂਜ਼ 11, ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 11 ਬਾਬ और उसकी 11 और 12 आयत में जल्दी तो पढ़ो। विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ्य पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। इस कारण एक ही जन से जो मरा हुआ सा था आकाश के तारों और समुद्र के तीर के भालों के समान अनगिनत वंश उत्पन्न हुए। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास ही से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ्य पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। विश्वास इस गल ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਅਬਰਾਹਮ ਔਰ ਸਾਰਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ कैसे भी क्यों ना हो, भावे ऐसी मरे हुए क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर का एक वायदा हमारे साथ है कि मैं तेरी पीढ़ी को आकाश के तारों और समुद्र के तीर के बालू के समान अनगिनत वंश दूंगा। उसने वायदा करने वाले को सच्चा जाना। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब्राहम जानदा सी भावे इस समय सारा ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਮਰੇ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਖਤਮ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵਾਂਗਾ।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯੁਕਤੀ ਸਦਾ ਸਥਿਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਮਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਪੀੜ੍ਹੀਓ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਾਵਤਾਂ 19 ਦੀ 21 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰੰਤੂ ਸਫਲ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਠਹਿਰਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਬਰਾਹਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਸਾਰਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਹ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਮਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ वो वफादार है, उस वायदे को भी परमेश्वर पूरा जरूर करेगा। हालेलुया आए हम अपनी आंखों को बंद करें। अब्राहम का विश्वास, जब वो निकला उसको नहीं पता था वो किधर को जाएगा। जब आपने मसीह को ग्रहण किया, आपको भी नहीं मालूम आप कहां तक आएंगे, लेकिन यदि परमेश्वर के पर विश्वास करने से, मूर्तियों की आराधना छोड़कर सच्चे जीवित परमेश्वर की आवाज सुनकर आप निकले हैं, यहां तक परमेश्वर अगर आपको लेकर आया, आगे भी परमेश्वर आपकी मदद करेगा। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। इस बात पर हम विश्वास करते हैं कि हम इस देश में परदेसी हैं। हम इस बात को मानते हैं कि उसने हमें चुना, हमने उसको नहीं चुना है। हम इस बात पर विश्वास करते हैं कि प्रभु जी तू मेरे नाम को जानता है, तू मेरा नाम ले लेकर तू मुझे पुकारता है, तेरी भेड़े तेरी आवाज को पहचानती है। आज भी परमेश्वर आपको जब बुला रहा, इट इज अ वेरी पर्सनल कॉल। ये बड़ा व्यक्तिगत एक बुलाहट है, ये सामूहिक बुलाहट नहीं, ये सबके लिए नहीं, परंतु जो कोई उसको कबूल करेगा वो ही उद्धार पाएगा। हालेलुया जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो बचाया जाएगा। हालेलुया जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो ही बचाया जाएगा। हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी उस महान बुलाहट के लिए धन्यवाद। हमने आपको नहीं परंतु आपने हमें चुना है। धन्यवाद करते, आप हमारे नाम को ले लेकर जानते और बुलाते हो खुदाया। अब्राहम ने विश्वास किया और विश्वास के साथ निकल पड़ा। जैसे उसने सुना उसने ग्रहण किया और आज्ञा को माना, और तो अपने विश्वास करने वालों का फलदाता है। आपने उसको प्रतिफल भी दिया। खुदाया, मैं प्रार्थना करता हूं अब्राहम जैसा विश्वास आप हमें भी देना मेरे प्यारे प्रभु। अब्राहम जैसा विश्वास आप हमें भी देना मेरे प्यारे प्रभु। इन दिनों में लोग तुझे पुकारे, लोग अपने जीवन को तेरी ओर मोड़े और विश्वास के प्रतिफल को देखने वाले बन सके। हालेलुया जितने जन आए हैं उन सबों के लिए धन्यवाद। विनती को सुने यीशु मसीह के नाम से। अरे खुदाम दे शमसियान करो, खुदा बाप का बड़े रूपी संगति हम सबके साथ भी, सारे संतों के साथ, कल इबादत के साथ, आने वाले रोजे के साथ आज से लेके अवधि तक बने रहे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सबको जय मसीह जी।